Hello students, myself as JP. Welcome to class 9 SST History. Children, in this portion I want to discuss about second chapter of SST, that is Socialism in Europe and Russian Revolution. This is part first. The topic of discussion is the age of social change. Children, as you know that French Revolution took place in 1789, and on behalf of French Revolution many European countries they started making nationalistic feeling, tried to make nation states and tried to become independent from colonial governments or any other monarchy rulers. You know, in French Revolution, monarchy ruler was uprooted by various types of revolutions conducted by revolutionaries. Children, at that time, the French society, it had a special structure before French Revolution, that is before old regime. But after French Revolution, they had framed their constitution and they started their regime on the basis of democratic constitution, and in this manner we had special things in society of European countries. If we discuss about various factors that how the social change took place after French Revolution, the age of social change started, means society was going to be changed. And you know very well that in France, not only in France, in other European countries, people started to change themselves, and the whole society was divided into three sections, and on the basis of their thinking and their opinion, they were organized in this manner. The very first one were liberals, second one were radicals, and third one were conservatives. Children, as you know that French society was totally under grip of landlords and various rich factory owners, and they were under their clutch and they could not, do anything by themselves. If we consider these sections of social change, that is the parts liberals, radicals and conservatives, we will find that this section of society, that is liberals, they tolerated religion, means they tolerated all religion. ये सभी रिलीजन को सहन करने की क्षमता थी इनके अंदर. ये चाहते थे कि हमारे यहाँ हर तरह के धर्म, हर तरह के रिलीजन को हम मान्यता दें. एंड अपोज पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर, ये कभी नहीं चाहते थे, हमेशा इस बात का विरोध करते थे कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो रूलर बनते चले आ रहे हैं उसका इन्होंने विरोध किया. दे ऑलवेज अपोज. अलॉन्ग विद दिस they wanted to safeguard the rights of individual against government. ये जो लिबरल विचारधारा के लोग थे वो चाहते थे कि हर व्यक्ति का एक राइट है, हर व्यक्ति का एक अधिकार है, सरकार के सामने वो उसकी सुरक्षा चाहते थे और हमेशा जो है उसको सेफ गार्ड करने में लगे रहते थे. हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, कहीं उसके साथ अन्याय ना हो, कहीं उसके साथ मोनार्ची रूलर्स उसके ऊपर जबरदस्ती ना करें. एंड दे आर्म्ड फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. उनका जो तर्क था वो चाहते थे कि हमेशा इलेक्शन हो और हमारे जो रूलर हो इलेक्ट होकर के आए, मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से मिल करके एक पार्लियामेंट या असेंबली बनाए और वो हमारे ऊपर रूल करें. इस तरह की इनकी विचारधारा थी. एंड द लॉज इंटरप्रिटेड बाय जुडिशरी, वो चाहते थे कि कोई एक आदमी कानून न बनाए, जो भी कानून बनना है उसके लिए एक जुडिशरी यानी न्यायपालिका होनी चाहिए, वो उस कानून को पूरी तरह से विचार विमर्श करके हमारे कल्याण के लिए बनाए. एंड अलॉन्ग विद दिस दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, UAE, means they wanted that
there should be everybody should be given right to vote. And after crossing the age of 18 plus, they are given, vote right. This was their belief. यानी लिबरल्स जो थे वो हमेशा उनकी इस तरह की विचारधारा थी। उसके बाद हमारी सोसाइटी का दूसरा जो सेक्टर था उसको कहा गया रेडिकल्स। ये जो रेडिकल्स लोग थे ये क्या चाहते थे? दे वांटेड नेशन बेस्ड ऑन मेजॉरिटी। लिबरल्स हमारे रेडिकल्स लोग हमेशा चाहते थे कि एक ऐसा नेशन हो जहाँ पर मेजॉरिटी का रूल हो, जो बहुसंख्यक लोग हैं, ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं, उन्हीं की बात माननी चाहिए, उन्हीं का ही गवर्नमेंट बनना चाहिए और उन्हीं का रूल होना चाहिए हमारे ऊपर। दे सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रागीट मूवमेंट। जितने भी रेडिकल्स थे उन्होंने हमेशा वुमेन सफ्रागीट मूवमेंट को सपोर्ट किया। सफ्रागीट मूवमेंट मीन्स राइट टू वोट, महिलाओं को भी वोट देने का राइट मिलना चाहिए, इस चीज़ को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। एंड फाइनली दे अपोज प्रिविलेज ऑफ लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री वर्कर्स। वो हमेशा इस बात का विरोध करते थे कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, उनको जो बिना मतलब का लाभ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से और पब्लिक भी उनको फ्री में उनका काम करती है, उसका हमेशा उन्होंने विरोध किया। और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि जो वेल्दी हमारे रिच जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको भी ये सुविधा मिले, क्योंकि वो तो पहले ही इतना संपत्ति जुटा लेते हैं, उनका शोषण कर करके, वर्कर्स का शोषण कर करके उनके पास ऑलरेडी इतना हो जाता है, तो किस बात का प्रिविलेज उनको नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके से हमारे लिबरल्स एंड रेडिकल्स ये जो थे हमारे इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक सेक्टर्स को मजबूत बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन अच्छी हो। चिल्ड्रन, एंड द वेरी थर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स अपोज द आइडिया ऑफ चेंज। ये चाहते थे कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो हमारा ट्रेडिशनल रूलर है वही रहना चाहिए, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये चाहते थे। और ये क्या थे? दे एक्सेप्टेड दैट, इन्होंने किस चीज़ को एक्सेप्ट किया? दे एक्सेप्टेड दैट चेंज इज इनएविटेबल बट पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड। उन्होंने कहा कि अगर परिवर्तन अनिवार्य है, अगर परिवर्तन जरूरी है तो हम परिवर्तन करें, लेकिन अपने जो बीती हुई हमारे जो संस्कार है, हमारे जो ट्रेडिशन है, उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए और उनको पूरी तरीके से सम्मान देना चाहिए। इन दिस मैनर दे ऑल्सो वांटेड दैट चेंज शुड बी स्लो। जो भी सोसाइटी में चेंज हो वो थोड़ा स्लो होना चाहिए, एकाएक नहीं होना चाहिए। पता लगा कि कोई बहुत बड़ा रूलर है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उसका एकाएक सारी प्रॉपर्टी छीन ली जाए तो उससे उसको जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए जो भी चेंजेस हमारे हैं सोसाइटी में उसको धीरे धीरे होना चाहिए, यानी कि एक साथ बंद कर दो। सो इन दिस मैनर जो हमारे कंजर्वेटिव्स थे इन्होंने पूरी तरीके से हमारे सोसाइटी को अपने काबू में रखना चाहा। Along with this, there was industrial society and social change. Children, you know that these liberals and radicals, they were responsible for industrial and economical change. They were land owners, they were factory owners, and they were mill owners. And they always wanted to, for the welfare of these people, that is workers. But conservatives, they thought that there should be traditional ruler, it should not change. वो चाहते थे कि हमारे जो पुराने इंस्टीट्यूशंस बने वो बने रहें, वर्कर्स का हमेशा शोषण होता रहे और उनको ज़्यादा फायदा ना दिया जाए, जबकि कंजर्वेटिव्स की विचारधारा इससे थोड़ी अलग थी। चिल्ड्रन, इन दिस इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंज न्यू सिटीज़ किए। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया तो लोग जो है महिलाएं, बच्चे और लड़के और जो है क्या कहते हैं जितने भी घर के ज़्यादातर जो लोग होते थे वो सिटी की तरफ भागने लगे सरप्लस इनकम के लिए, मतलब ज़्यादा कमाने के लिए। और इस तरीके से क्या हुआ, वहाँ न्यू सिटीज़ बनने लगी, लोग शहर में मकान बनाने लगे फैक्ट्रीज के बगल में। न्यू इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप, एक नया इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हो गया, नया क्षेत्र डेवलप हो गया और वहाँ के जो है रेलवेज एक्सपैंडेड, उसमें रेलवे की खोज हो गई थी और उसका विस्तार किया गया, उसकी पटरियाँ बिछने लगी, उसमें वर्कर्स की ज़रूरत पड़ने लगी। इस तरीके से सब लोग उसमें इन्वॉल्व होने लगे। एंड
और वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ। एक फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई, एक के बाद एक, जहाँ भी जगह खाली होती थी वहाँ फैक्ट्रीज लगने लगती थी और वर्कर्स एकदम रश करते थे। वर्कर्स तुरंत जो है जहाँ पता लगा कि वहाँ फैक्ट्री लग रही है तुरंत पता लगा करके वहाँ पे आके ज्वाइन करने की विचार बनाने लगते थे। इस तरीके से जो है एक हमारा एक इंडस्ट्रियल एंड सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और हमारे इंडस्ट्री में और सोसाइटी में एक चेंज आया। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद वर्कर्स केम बट दे वर एक्सप्लॉइटेड, उनका शोषण हुआ। कंडीशन क्या बनी? मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन केम टू फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद महिलाएं, बच्चे और क्या कहते हैं पुरुष सब लोग फैक्ट्री की तरफ आने लगे। परंतु क्योंकि ये लोग रूरल एरिया में काम करते थे, वहाँ ऑलरेडी उनकी इनकम बहुत कम थी और वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार थे। इसीलिए जो है उसका फ़ायदा उठाया हमारे इंडस्ट्रियल जो है ओनर्स ने, मतलब हमारे मिल ओनर्स ने उन्हें पुअर वेजेस देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने पैसा तो बहुत कम देखा था। उनको जब थोड़ा भी पैसा मिलने लगा तो लगा कि बहुत मिल रहा है, तो वही वेजेस उनके लिए लगता था कि बहुत है, जबकि उनके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन उससे अब जो है वो अपना इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते थे, अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे। वेजेस वर पुअर एंड लॉन्ग वर्क आवर्स, कम पैसा दे करके ज़्यादा समय तक काम कराते थे। ये थी उस समय की इंडस्ट्रियल कंडीशन। एंड अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन, बेरोजगारी भी बढ़ गई थी। देखा देखी ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव छोड़ करके सिटी में आने लगे, जिसकी वजह से अब जितनी वैकेंसी उतने ही लोगों को रखेंगे। बाकी लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहते थे और वेट करते थे कब हमारा नंबर आएगा, कौन छोड़ेगा। इन दिस वे वहाँ पे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम, वहाँ जो घर वगैरह था उसकी समस्या खड़ी हो गई, तत्काल घर कहाँ से बनेगा। फिर वहाँ जल निकासी की जो प्रॉब्लम है, मतलब पानी उनी जगह जगह पे सबके घर के सामने इकट्ठा होता था, मच्छर पैदा होते थे, जिससे अनहाइजीनिक कंडीशन बन जाती थी और लोग जो है पूरी तरीके से जो है अपने आप को हेल्दी नहीं रख पाते थे। और अलॉन्ग विद दिस दे हैड अ प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन, पानी जगह जगह पे, कूड़ा जगह जगह पे डंप रहता था, जिसकी वजह से तमाम तरह के जर्म्स मल्टीप्लाई होते थे और उसकी वजह से एपिडेमिक तक फैलने का डर बना रहता था। इन दिस वे दिस वाज द न्यूज़ मीन्स अ स्पेशल चेंज, दैट इज इंडस्ट्रियल society and social change took place. Means people, they were living in rural background. When they came in urban area, their lifestyle was totally changed. Their daily routine was changed, and they had to become a machine, and they had to work well in time. They had long hours. They could not spare times for their children. They could not spare times for their parents. Along with this, they could not go their home frequently. In this way, they had missed their family members. So this was the social condition, and here the social change was because of industrial revolution. And in this social conditions you had, but conservatives, they always opposed all these industrial changes. That is, liberals and radicals were opposed by conservatives. Conservatives always thought that there should be monarchy rule, there should be no constitutional democracy. They thought that old tradition should be prevailed. That's why they had to oppose. They had to make some plannings. They had to make plans or hatch plan to make this democratic government fail. So in this manner, this was the age of social change in Europe. Okay, thank you for watching part 1.